This conference will now be recorded. If we compare our load balancer to application gateway in terms of security, so application gateway is much better uh, in compare of local normal load balancer services. But we should know about the which technical terms or which technical services can help us to provide a more security over a application gateway. So I'm just going to give you the complete information because we have already discussed about कि application gateway में क्या क्या वो additional part है जिसकी वजह से हमारा environment secure रहता है. The one of important tool is VNet and subnet. Second option is WAF, Web Application Firewall. Third important part is SSL and TLS. जो आपके वेबसाइट पे जहां पे भी वेबसाइट आप होस्ट कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इट कैन जस्ट ओपन पोर्ट नंबर 80 एंड 443. बाकी किसी तरीके के पोर्ट नंबर को ये इंटरटेन नहीं करता. बाकी किसी भी तरीके के प्रोटोकॉल को ये सर्विस नहीं देगा कि आप उसके थ्रू कम्युनिकेशन करा पाए. These all are the prerequisite. थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं of our application gateway. So if you want to establish your application gateway, you need to create a VNet. VNet should be connected with two different subnet. Subnet 1 for virtual machine, subnet 2 for our app gateway, application gateway. ये दो पार्ट हमें एज ए सबनेट तैयार करना पड़ेगा. एंड as per the name suggests, VM subnet responsible to contain the virtual machine. जितने भी instances आप create करना चाहते हैं, you can just put it into the subnet of our VM subnet, and application gateway which is responsible to connect with gateway. That's it. So I'm going to show you the step from very basic. The important part, you need to open our Azure portal. Over a portal, we need to create a one VNet, one virtual machine. Then we'll move ourselves to application gateway. Means how we can add our virtual machine to application gateway. It works just like a load balancer, but load balancer के compare में ये हमें ज़्यादा facility या ज़्यादा security provide करता है. So we just need to open basic step that we need to use to create our VNet part, और उसमें हमें दो subnet तैयार करके रखने हैं. Provide the basic information like as a container and about the subscription and app VNet gateway. App VNet gateway. This is our virtual gateway name, VNet name. I want to put it in location of Central US. Default नहीं use करना हमें 192.168.1.0/25. As we know that in case of /25, we are able to connect up to 128 virtual machine. एक subnet VM बना देते हैं. 192.168.1.0/ करके हम यहाँ पे दे देते हैं 26. 64 IP address इसमें मिल जाएगी. Another subnet I'm going to add with name of application subnet. Need to provide the IP address range, remaining IP address range 192.168.1.64/27. ये दूसरा सबनेट एप्लीकेशन गेटवे के लिए होगा. दैट्स इट. ये पहला, ये फर्स्ट प्रीरिक्विजिट हमने अटैच किया. And third, we need to create a virtual machine, and we'll need to put our virtual machine to application gateway, just like a load balancer. जैसे load balancer के अंदर हमने instances को ऐड किए थे, as it is इसमें भी instances ऐड होंगे. But difference ये है कि LB के केस में we can use default VNet, but यहाँ पे हम default VNet में activity नहीं perform कर सकते, because default VNet के केस में आपके पास एक ही subnet रहता है. If you proceed to create your own subnet, definitely you are able to create your application gateway. But in this case, we must need to establish our own subnet with on VNet with different subnets. We successfully created a VNet with name of app VNet. Second step क्या कहता है? You need to create at least one virtual machine जिसको आप identify कर पाएं application gateway में. So it's up to you. 2, 3, 4 जितने भी instances आपको बनाने हैं backend के लिए, it's up to you. But यहाँ पे हम testing purpose के लिए
एक इंस्टेंस रख लेते हैं इसके बैकएंड में. The virtual machine should be a part of same location, otherwise we are unable to find the same VM in our application gateway. तो यहाँ पे हम same location में रखते हैं. Not required any kind of failover. So I'm just going to proceed with 2012 R2 और जो normal user ID and password हम send करते हैं, save करते हैं. 3389 plus 80 because we don't have SSL certificate, so I'll help you how you can configure your SSL certificate once we complete the part of our application gateway. VNet and not in some application subnet. I want to put it into the subnet VM. Port number 80 and port number 3389. Next, review and create. This is first step that we need to use, and same is second step as we discussed before कि जब भी आप instance तैयार करेंगे, you must need to install internet information services that can help us to create a dummy website. So in case of Windows machine, IIS can help us, and in case of Linux or Ubuntu, we just need to install Apache service to host the website. It is in progress. Once our virtual machine is ready to use, we will take the RDP and configure some internet information services. So उसमें थोड़ा dummy website बनाएंगे and then add our virtual machine to the load balancer application gateway. Okay. After that, we'll move ourselves to the VNet activity. So VNet cake, not VNet, it's a VPN connection. So we'll discuss about the VPN and VPN complete करने के बाद ये troubleshooting का part आएगा, because without hybrid environment we are unable to troubleshoot it. Is in progress. इसमें हमने एडी का पार्ट कंप्लीट किया था क्या, या डायरेक्ट हमने स्टोरेज से स्टार्टिंग की थी? नहीं सर, एडी देखा नहीं है. एडी हो गया था? हेलो, नहीं सर, एडी हमने किया नहीं था, क्योंकि हमने एडी आपने की. कहा था स्टोरेज और वो सब उसके बाद करेंगे. अच्छा एडी ठीक है. पूरा बाकी था. हम्म. We have a two और different एक way to स्टोरेज start में, AG. Sorry. हाँ, और इसमें आई थिंक स्टोरेज में एक सेक्शन बाकी है, ये वाला, यहाँ फाइल सिंक सर्वर वाला. नहीं ये नहीं, नहीं नहीं ये वाला नहीं, मैं बता, ये वाला नहीं, ऊपर नहीं, ये वाला भी नहीं सर. एक बार ऊपर जाओ ना इसमें स्टोरेज में, कॉन्फ़िगर वर्कस्पेस. ये यहाँ से स्टोरेज स्टार्टेड है. हाँ यहाँ से, ओके ओके, एक बार नीचे जाओ. ये स्टोरेज शायद पूरा हो गया. कंप्यूट में कुछ बाकी है शायद, एक छोटा सेक्शन हमने स्किप किया था. हाँ ये वाला AKS क्लस्टर और AKS और हाँ, ये वाला बाकी है. कंटेनर सर्विसेज. हाँ, इंस्टेंसेस, AKS क्लस्टर और ऐप सर्विस प्लान, ऐप सर्विसेज, कॉन्फ़िगर ये बैकअप तो फॉर हो ऐप गया था. सर्विसेज, ये सब. ये हो गया था. कॉन्फ़िगर स्केलिंग सेटिंग्स इन ऐप सर्विस प्लान, क्रिएट एन ऐप सर्विस. हाँ, ऐप सर्विस हो गया. हाँ, एक ही सेक्शन बाकी था सर, कंप्यूट का, ऐसा कुछ हमारा था. केवल ये AKS बचा था आई थिंक, जो हमने छोड़ा था. हाँ और AKS. हाँ, हम बात करें एडी में, तो एडी में
अगर कुछ भी नहीं हुआ तो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, हम्म, राइट? एक, नहीं एडी कुछ भी नहीं हुआ था सर। और ये 3, ये हुआ सर था नेटवर्क रिसोर्स भी कुछ, शेयरिंग। क्या सर? ये पार्ट हुआ था क्या? नहीं सर मेरे साथ एडी आपने किया ही नहीं है, आपने डायरेक्ट नहीं स्टोरेज नहीं, से शुरू किया था। अच्छा ठीक है। क्योंकि आपने कहा था तो हम एडी पे लास्ट में आएंगे, ऐसा कुछ कहा था आपने कि जब एक बार सब हो जाएगा उसके बाद। नो प्रॉब्लम, चलो इसको फटाफट करते हैं, बिकॉज वी नीड टू कंप्लीट द बीपीएन पार्ट एंड ट्रबल शूटिंग बीपीएन की। लेट मी कनेक्ट आरडीपी, और इसमें एक छोटी सी डमी वेबसाइट बना लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो सके हाउ वी कैन यूज आवर एप्लीकेशन गेटवे। डमी वेबसाइट बनाने के बाद हम एप्लीकेशन गेटवे इंस्टॉल करेंगे ना? हाँ, बैकएंड की सारी एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद ही हम एप्लीकेशन गेटवे को अटैच करेंगे। सेम प्रोसीजर, नीड टू इंस्टॉल इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, उसके बाद एक डमी वेबसाइट। Okay, so actually, application gateway required up to 8 to 10 minutes to create our application. And meanwhile, हम लोग discuss कर लेंगे about VPN. So, what do you think about the VPN concept? VPN is virtual private network and it helps us to connect to our, to for example if I want to connect to my office network, I need VPN connectivity. It is basically a pathway to connect to a private network using an application like a VPN application. For And we example, if use I'm overseas and sorry, office पे के location में हमने AD install कर रखा है, okay? And I'm using laptop at my home. Office का ही laptop जो domain का member है, घर से हम हम्म, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या डोमेन पे जो सर्विसेज या पॉलिसीज हैं उनको हम घर पे अपने दूसरे रिमोट लोकेशन पे इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं अगर VPN एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है और अगर वो लैपटॉप डोमेन का पार्ट है, अगर वो लैपटॉप एडी में
अपने डोमेन पे है तो हम उसे एक्सेस कर पाएंगे एज लॉन्ग एज वीपीएन लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है और कनेक्टेड है. We can say that VPN can help us to make a connection through a private IP address instead of public. Yes, yes, it Because helps if us to you have connect to public the. IP, correct. Fine. So we successfully created our virtual machine for the application gateway testing. So as we know that this is the part of load balancer, we need to open network and load balancers को open कर लेंगे. And this time we need to proceed with application gateway. कोई भी एप्लीकेशन गेटवे नहीं है, हम जस्ट गोइंग टू क्रिएट इट वर्क जस्ट लाइक अ प्रोसीजर की बात करें तो बिल्कुल लोड बैलेंसर की तरीके से फॉलो करना है. इवन जितने भी यहाँ पे एलबी है, फ्रंट एंड की बात करें या ट्रैफिक मैनेजर की बात करें, तो इनके प्रोसीजर में सभी में लगभग सेम ही स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना होता है. एनीवे, लेट्स ट्राई टू एस्टैब्लिश आवर एप्लीकेशन गेटवे. Select your subscription because we created our virtual machine and subnets and vnet in our subscription. तो आपको सेम रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, RG क्लास. टाइप द नेम ऑफ योर एप्लीकेशन गेटवे टेस्टिंग गेटवे. ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज टेस्टिंग गेटवे. सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन जहाँ पे हमने अपने VMs वगैरह को तैयार कर रखा है, तो यू मस्ट नीड टू यूज द सेम लोकेशन. अबाउट द टीयर, जैसे वहां पे हमने SKU पढ़ा था, यहाँ पे हमारे पास टीयर है, मल्टीपल टीयर्स आर अवेलेबल लाइक एज स्टैंडर्ड वर्जन 2, WAF एंड WAF वर्जन 2. Standard can perform the task just like a load balancer. It cannot give you any kind of internal security and इसका जो cost है वो हमारे WAF से थोड़ा सा कम है. Standard can perform the task just like a LB. In future अगर आप अपनी security बढ़ाना चाहते हैं तो you can change your tier anytime. स्टार्टिंग में अपने ई कॉमर्स की वेबसाइट इस्टेब्लिश की है, सिक्योरिटी का उतना ज़्यादा हेडेक नहीं है, थोड़ी सी कॉस्ट कहीं से कम करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड में अभी हम मूव कर सकते हैं. इन केस पॉपुलरिटी बढ़ने के बाद अगर हमें सिक्योरिटी थोड़ा सा इंक्रीज करनी है, एनहांस करनी है, तो आप अपने प्लान को, टीयर को कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है. इट्स अप टू यू. You can directly proceed with WAF, you can proceed with standard 1 or 2. ये आपके ऊपर डिपेंड है. Second important part is enable auto scaling. If you want to configure the auto scaling, यहाँ पे आपको yes करना पड़ेगा. एंड जो भी आप यहाँ पे अवेलेबिलिटी सेट करना चाहते हैं, रिमेम्बर ऑटो VMSS में हमने एक ऑटो स्केलिंग का पार्ट पढ़ा था. इट्स अ काइंड ऑफ वर्टिकल स्केलिंग, राइट, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. स्केल सेट्स लगाए थे. So if you want to add minimum instance count, maximum instance count, आपको यहाँ पे लिमिट देनी पड़ेगी बस. Minimum instance count, like I'm just going to proceed 2. Maximum instance count 10. It means that कितना भी डिलीट हो जाए, 0% मीन्स 10% आपके CPU का कंजप्शन हो जाए, 5% CPU का कंजप्शन हो जाए, बट फाइनली 2 इंस्टेंस से कम नहीं होगा, राइट. और मैक्सिमम अगर आपका 100% भी CPU कंजप्शन हो रहा है 10 मशीन के बाद, तो 11th मशीन या 11वीं मशीन इसमें नहीं ऐड होने देगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटो स्केलिंग व्हिच इज मैनेज एंड प्रोवाइडेड बाय द बैकएंड. ये सारी एक्टिविटी बैकएंड प्रोवाइड करेगा अपनी तरफ से, हमें कुछ भी नहीं करना. I'm not going to proceed with auto scaling. Instance count, the capacity of your application gateway, how much instance you want to add in the back end. तो 2, 4, 15, 20, 25 जितना भी आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे नंबर्स दे देंगे. I don't want to proceed with availability zone. बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, फॉल्ट टॉलरेंस की जरूरत है. Then you can proceed with availability zone, otherwise none पे. नेक्स्ट, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑप्शन जहाँ पे आप अपने गेटवे की इंफॉर्मेशन और अपने सबनेट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. दिस इज अवर वीनेट, और ये अपने पास जो सबनेट हमने इसके अंदर बनाया था उसकी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर दीजिए. सेम प्रोसीजर पे आ गए हम लोग. फ्रंट एंड आईपी यू नो वेरी वेल अबाउट. दिस इज पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस या बोथ. हम यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस, एक नई आईपी एड्रेस यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, ऐप public IP. So you must need to create a new public IP address because we don't want to use our virtual machine's public IP address, and I want to use our application gateway from outside the network. Second option is a backend tool. As per the name suggests, the backend tool can help us to provide the
access of our virtual machine. So you must need to compare. यहाँ पे देखिए कितने ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं to add the virtual machine. virtual machine, VMSs, app services, um, 4 options है. If we compare with load balancer, तो load balancer में कितना था? So load balancer में सिर्फ virtual machine की availability sets थी. 2 थे, एक virtual machine था और एक VMSs था, that's it. बस सिर्फ वर्चुअल मशीन ही थे, मतलब बेसिकली थे वर्चुअल मशीन ही. हम ऐप सर्विसेज और आईपी एड्रेसेस और एफडीक्यूएन नहीं लगा सकते थे, एफक्यूडीएन. करेक्ट. तो यहाँ पे अपने पास 2 ऑप्शंस और इंक्रीज हो गए हैं. एक तो ऐप सर्विसेज का आ गया है डायरेक्टली और दूसरा ऑप्शन आ गया है एफक्यूडीएन. अगर आपके पास डोमेन कोई इन्वायरमेंट में चल रहा है तो आप प्रोसीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एफक्यूडीएन. I'm not going to proceed with any because I want to add our VM with the help of virtual machine option. Same option, you need to provide the private IP address. इसमें एक थोड़ा सा ऑप्शन ये है कि no need to create our VM in availability set like as जैसे load balancer में हमने तैयार किया था, यहाँ पे तैयार करने की जरूरत नहीं. ऐड पे क्लिक करेंगे हम, नेक्स्ट करेंगे, which is another important part. 1, 2 we successfully configure in backend pool testing in case of front end IP app public IP address जो just अभी हमने फाइनल किया, कॉन्फ़िगर किया. Think about other, which is routing rules. So in case of routing rule, it works just like a NAT rule. जैसे not inbound NAT rule की तरह काम करेगा, जो rule की तरह काम करेगा, जो कि आपके backend से आने वाले request को allow करेगा to access our services. Testing rule, listener name दे देते हैं test, और यहाँ पे public IP address, we want to access from public IP address. No need to do anything. We don't have any error URL. We haven't designed any error URL like as a website is in maintenance, try again, like that. If you have, you can just assign the path. तो अपने पास ऐसा कुछ नहीं है. I'm just going to proceed with more. Second option is, first is listener, second is backend target. Backend target means which is related to the backend pool that you configure. तो backend pool में हमने testing बनाया तो ये यहाँ पे आसानी से प्रोवाइड कर देंगे. HTTP setting, तो HTTP setting में हम पोर्ट नंबर 80 असाइन करने वाले हैं. पोर्ट नंबर 80 क्लिक ऐड. नो नीड टू डू एनीथिंग. ऐड अगेन. 1, 2 and 3 तीनों ऑप्शन हमने यहाँ पे सेट कर दिया. नीड टू क्लिक नेक्स्ट. रिव्यू. If everything is okay, ये अप्रूवल दे देगा and we are able to create our load balance. Application. ठीक है. Once our application gateway is ready, we will try to understand about the features or options which is available, and after that we'll proceed for the VPN, which are one of important topics. Okay, it is in progress. It will take up to 8 to 10 minutes. 8 से 10 मिनट का टाइम इसमें लगेगा. Meanwhile, I'm going to define you about the concept of VPN. बेस से जो भी components VPN में होते हैं उन सब के बारे में बात करते हैं. Azure VPN setup in case of administrator, ये सबसे important topic कहलाता है. तो let's talk about कि कैसे ये काम करेगा. ठीक है. VPN की बात करें बहुत ही बेस से, तो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर Azure पोर्टल. एंड ये अपने पास ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे मल्टीपल सिस्टम्स अवेलेबल है. n number of data center, n number of servers, or n number of database are available. This is our on-prem office. This is our on-prem office setup. और एक तो ऐसे हमें देखना है. दूसरा है अपने पास I want to connect with my personal laptop या desktop अपने पास है. ठीक है. So what we need to do with the help of
ISP and VPN connection we are able to make a connectivity, but you should know about कि इन दोनों के बीच में establish कैसे होगा. ये जो part है ना, which is considered as a साइट टू साइट, इसको क्या बोलेंगे? साइट टू साइट कनेक्शन बोलेंगे. बिकॉज इन दिस केस एक पूरी साइट को आप कम्युनिकेट कर रहे हो. यहाँ पे जो आईएसपी या फायरवॉल या जो रूटर लगा है, आप उसकी आईपी एड्रेस को एक्सेस करा रहे हैं अपने इंस्टेंसेस से जो आपने एज्यूर पोर्टल पे बना रखा है. मींस ये सभी सिस्टम जो एज्यूर पे आपने तैयार कर रखा है वीनेट के अंदर, ये सभी सिस्टम इन सभी कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं. Only the region of site-to-site communication, site-to-site VPN. Is it okay? Please confirm. Yes, sir. In case of individual machine, ये क्या कहलाएगा? Point to site. Site to point, point to site कुछ भी बोल सकते हैं. Because you are making a connection between individual machine to organization. तो ये site हो गई, क्योंकि VNet में जितने इंस्टेंस रहेंगे इस मशीन से तो कम्युनिकेट करेंगे ही करेंगे. लेकिन ये एक लौता सिस्टम होगा जो आपके सभी सिस्टम से कनेक्ट होगा. तो दिस वन इज द पॉइंट एंड दिस इज आवर साइट. सिंपल. सो आवर रिस्पांसिबिलिटी टू अंडरस्टैंड अबाउट द बोथ प्रोसीजर. ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल सिस्टम को एक्सेस देना है, तो डेफिनेटली वी नीड टू प्रोसीड विद साइट टू साइट. अगर हम बात करें अपने साइट टू पॉइंट के केस में, अलग अलग बंदे हैं. जैसे आज के डेट में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इस केस में हम हर एक सिस्टम के लिए VPN का कनेक्शन शेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ site to point. Try to understand about the components. जो components इसमें required हैं, जो settings required हैं. That's why, see, VPN या application gateway या किसी भी load balancer की activity या troubleshooting को समझने के पहले make sure कि हमारा जो base है network से related वो clear. And in this case, it's really simple step to configure. Actually, इसमें थोड़ा सा time taken है. Time taken in the sense कि अगर हम गेटवे बनाते हैं आज, तो गेटवे बनने में लगता है 1 घंटे का टाइम. जो वो टाइम लगता है वो से बस उसी टाइम कंजप्शन है. अदरवाइज जो प्रोसीजर हम इस्तेमाल करते हैं, विद इन 5 मिनट आप प्रोसीजर कंप्लीट. विद इन 5 मिनट यू आर एबल टू रेडी योर VPN कनेक्शन. लेकिन गेटवे बैकएंड का प्रोसेस है, तो हमें वेट करना पड़ता है. लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट. मींस क्या क्या कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं VPN को सेटअप करने के लिए. As we know that, एक तो Azure के पार्ट में आएगा. Azure पोर्टल से आपको क्या क्या परचेज करना है, वो उसकी लिस्ट तैयार करनी है. ऑन प्रोमाइसेस मशीन यानी लोकल कंप्यूटर पे जो आपके पास सेटअप है, ऑन प्रोमाइसेस पीसी या ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगा, उसके बाद. Azure पोर्टल पे सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक VNet, दूसरा 2 सबनेट, तीसरा जो है वर्चुअल नेटवर्क गेटवे. एक सर्विस है वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, इसी को बनने में ज्यादा टाइम लगता है, बाकी तो आसानी से हो जाता है. ये 3 सर्विसेज हम पोर्टल पे परचेज करेंगे. ठीक है, इन 3 सर्विसेज के जरिए VPN का सेटअप करेंगे. ऑन प्रोमाइसेस की क्या रिक्वायरमेंट है? ऑन प्रोमाइसेस के केस में हमारा जो सिस्टम है एटलीस्ट 15 Mbps के प्लान से कनेक्ट करना है. एटलीस्ट इतना तो स्पीड हमें मिलनी चाहिए. ISP की बात करें तो 15 Mbps, ये पहली रिक्वायरमेंट है. दूसरी रिक्वायरमेंट, क्रिएट सेल्फ साइन सर्टिफिकेट. सेल्फ साइन सर्टिफिकेट हम तैयार करेंगे. एंड देन डाउनलोड VPN क्लाइंट. हम क्या करेंगे, एक VPN क्लाइंट को डाउनलोड करेंगे. देन दैट्स इट. ये प्री रिक्विजिट कंप्लीट होने के बाद हम वी आर एबल टू मेक अ कनेक्शन. Azure पे VNet, सबनेट और वर्चुअल नेटवर्क गेटवे. ऑन प्रोमाइसेस पे इंटरनेट की स्पीड वेरीफाई करना और एक सेल्फ साइन सर्टिफिकेट बनाना और डाउनलोड VPN क्लाइंट का. यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि हम साइट टू पॉइंट क्रिएट करने वाले हैं, बिकॉज वी डोंट हैव अ रूटर और फायरवॉल इन ऑन प्रोमाइसेस. साइट टू साइट के लिए आपके पास ऑन प्रोमाइसेस पे फायरवॉल होना इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है. अगर फायरवॉल नहीं है तो आपके रूटर में, सिस्को के रूटर में वो फीचर होना चाहिए जो VPN के क्लाइंट को जनरेट कर सके. तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा.
Azure VNet should be connected with two different subnet, VM subnet, virtual network subnet for gateway. That's it. इस सबनेट के अंदर हम अटैच करेंगे वर्चुअल नेटवर्क गेटवे. That's it. This is our on premises. बैक आ जाते हैं अपने ऑन premises लैपटॉप पे. इस लैपटॉप पे हम क्रिएट करेंगे सर्टिफिकेट. I'll give you command कैसे हम PowerShell के थ्रू सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे. And upload certificate to gateway. जैसे हम अपलोड करेंगे ये हमें एक टूल डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा which is considered VPN client tool. You will be get the option of download VPN gateway tool once you install the certificate. और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद we are able to download and install to our on premises. And installation के बाद we are able to make a connection with it. That's it. This is the procedure. प्रोसीजर फॉलो करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, गेटवे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, इस वजह से टोटल जो टाइमिंग लगेगी मोर देन 1 आवर. Right. Is it clear about the procedure? No, not procedure. About components. Yes. I'm just going to open क्योंकि application gateway ready हो चुका है, so I'm just going to open our gateway public IP address. हमें gateway की public IP address open करनी है. And gateway टेस्टिंग गेटवे के नाम से बनाया था और इस पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी पेस्ट ऑन एनी ब्राउजर. We are able to access our website. But unfortunately ये not secure है. बिल्कुल not secure रहेगी क्योंकि अपने पास ऐसा कुछ भी हम establish नहीं. Right. तो अब ये थोड़ा सा हटके है to our load balancer because अगर आप इसके properties में देखेंगे तो n number of options मिलते हैं. The important part is SSL setting. अब देखिए यहाँ पे SSL settings है. It gives you path to configure your SSL profile. And you can upload your certificate from on premises या फिर आप new SSL certificate यहाँ से purchase कर सकते हैं. You just need to upload the file that you downloaded. अगर डोमेन आपका किसी दूसरे लोकेशन से है godaddy.com या कहीं से भी, तो आप उन प्रोवाइडर को, डोमेन प्रोवाइडर जिसने भी डोमेन प्रोवाइड किया है उनसे आप डिस्कस करके एक्सेस कर सकते हैं. बट यू हैव टू पे द अमाउंट फॉर एंटायर ईयर. ये जो टूल है इसका आपको पे करना पड़ेगा पूरे साल के लिए. कॉस्टिंग आपके डोमेन की पॉपुलैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा. कभी भी डोमेन का प्राइस या डोमेन का सर्टिफिकेट प्राइस सेम नहीं रहेगा. Is it okay about it? Yes, sir. Makes sense. ठीक है. If we talk about I want to purchase the certificate directly from the Azure portal, सबसे बेस्ट रहता है कि हम Azure से सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करें. बट इसकी कॉस्ट आई थिंक हमने उसमें देखी थी बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है ना. अगर आप वाइल्ड कार्ड लेते हैं, ठीक है ना, तो वाइल्ड कार्ड की जो सर्टिफिकेट की कॉस्ट है लगभग $300 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा पूरे साल के लिए.
नॉर्मल केवल एक नेम से सर्टिफिकेट परचेज करते हैं तो इन दिस केस आई थिंक $60 $70 के आसपास आपको पे करना है। तो इसलिए बेटर है कि godaddy.com से अगर आपने डोमेन परचेज कर रखा है तो वहां से हम बार्गेनिंग करके परचेज कर सकते हैं। डू नॉट परचेज SSL सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी वेबसाइट। कोई भी वेबसाइट आपको 2000-3000 में अगर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो मे भी कि उसके अंदर उन्होंने पॉइजनिंग कर रखी है। पॉइजनिंग इन द सेंस सर्टिफिकेट इंस्टॉल होगा, काम करेगा, बट वो आपके पूरी वेबसाइट की क्लोनिंग कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप किसी ब्रांड से या किसी रेप्यूटेड वेबसाइट या प्रोवाइडर से ही सर्टिफिकेट खरीदें। क्लियर? यस सर। WAF क्या होता है? WAF के बारे में बात कर लेते हैं। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। स्टार्टिंग में WAF का हम सिलेक्शन नहीं किया था, हमने स्टैंडर्ड हमने वर्जन फायरवॉल पे नहीं प्रोसीड करा है, राइट। फायरवॉल का सेक्शन नहीं किया, तो वो इसके अंदर उसके अंदर कवर होगा सर, या इसके अंदर ही हम इस नहीं नहीं उसको नहीं, जानने के लिए WAF वेब एप्लीकेशन फायरवॉल इट्स अ वर्चुअल सेटिंग। ओके ओके। इट्स अ बिल्ट इन वर्चुअल फायरवॉल। जैसे NSG एक फायरवॉल की तरह काम करता है, वैसे WAF भी एक तरीके का एप्लीकेशन का फायरवॉल होता है, जिसके थ्रू आप अपने इस पूरे वेबसाइट को बैकएंड से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है? जैसे हम इसको एक्टिवेट करते हैं, WAF को एक्टिवेट करते हैं, इट गिव यू टू डिफरेंट ऑप्शन, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। दो ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि हमें मॉनिटर करना है कि आई जस्ट वांट टू चेक कि कहाँ से अटैक आ रहे हैं या किस टाइप के अटैक हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो आप इसको क्या करेंगे? यू कैन प्रोसीड विद डिटेक्शन। आपको नहीं मतलब है उसको ट्रेस करने का कि कौन सा बंदा हमें हिट मार रहा है, कौन से बंदा हमारे वेबसाइट को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, तो आप डायरेक्टली उसको प्रिवेंट कर देंगे। तो प्रिवेंट में जैसे हम प्रोसीड करते हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे WAF की हो जाती है कि वो हमारे इन्वायरमेंट को ब्लॉक करे, बिना हमें इन्फॉर्म किए हुए जो भी हिट आएगी वो खुद से हैंडल करेगा, उसको खुद से डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। द मेन एजेंडा टू प्रोटेक्ट आवर वेबसाइट, हमारे वेबसाइट को प्रोटेक्ट करके रखे। आई डोंट वांट टू नो अबाउट अटैकर। 1000 अटैकर आएंगे तो हम टीम नहीं दे सकते उनको, अपने एम्प्लॉय का टाइम नहीं दे सकते कि कहाँ से अटैक। क्लियर ना? यस सर। मोस्टली क्या होता है ना, एक टाइम होता है, मीन्स अगर बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी है, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी है, अमेजन की बात करें, स्नैपडील की बात करें, या अपने पास फ्लिपकार्ट की बात करें, तो ये इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि इनके थाउजेंड्स ऑफ हेटर होंगे, लाखों हेटर होंगे, उनको कुछ नहीं मतलब है, वो बेवजह के इनके ऊपर हिट्स मारते रहते हैं। ठीक है? तो अब इस केस में अमेजन या फ्लिपकार्ट क्या करेगा? अपने एम्प्लॉय का टाइम वेस्ट नहीं कराएगा, वो प्रिवेंट पे डाल देगा। क्योंकि 10,000 हिट्स, 10,000 अटैकर आ रहे हैं वेबसाइट पे को डिस्टर्ब करने के लिए, तो वी डोंट हैव अ टाइम कि सबको मॉनिटर करें। क्लियर? यस सर। तो WEF कंटेन टू इंपॉर्टेंट पार्ट, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। डिटेक्शन तब होता है जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, R&D करना चाहते हैं, देन यू कैन प्रोसीड विद दैट। प्रिवेंशन, आई डोंट वांट टू गिव टाइम टू अवर अटैकर, हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम अटैकर को टाइम दें, उसको समझो। ठीक है? थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू पे द अमाउंट। इसके लिए आपको प्रॉपर अमाउंट पे करना पड़ता है जब आप WEF कॉन्फ़िगर करते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है? नेक्स्ट, एक यहाँ पे लिसनर्स है। सो लिसनर्स क्या है ना, इट गिव अस ऑप्शन टू मैनेज मल्टीपल वेबसाइट थ्रू सेम लोड बैलेंसर। आप अपने एक ही लोड बैलेंसर में, एप्लीकेशन गेटवे में मल्टीपल वेबसाइट को अटैच कर सकते हो, मल्टीपल वेबसाइट को, या एक ही वेबसाइट को मल्टीपल पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इट्स अप टू यू। ठीक है? ताकि कोई भी अटैकर हमें ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो उसको 2 या 3 आईपी एड्रेस दिखाई पड़े, जिससे वो कंफ्यूज हो जाए। ठीक है? राइट सर। दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन गेटवे। SSL हमने क्लियर कर लिया, एंड जो कॉन्फ़िगरेशन था वो हमने डिस्कस कर लिया। आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑटो स्केलिंग की सर्विस का आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें थोड़ी सी सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए,
फॉल्ट टॉलरेंस से रिलेटेड, तो आप इसमें होटल स्टेइंग की सर्विस का उपयोग करें। गॉट इट। Is it clear? यस सर। ठीक है, तो ये हो गए बात अपने पास एप्लीकेशन गेटवे की। और अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, अगला जो टॉपिक है अपने पास वो है Azure VPN सेटअप। और Azure VPN सेटअप में ये तीन चीजें, VNet प्लस 2 सबनेट प्लस 1 वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। 1 वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनने के बाद हम VPN सर इंस्टॉल करेंगे, हम समझ करेंगे। तो ये एग्जाम में क्या ऐसे सेटअप करने के लिए कहेंगे हमें, ऐसा कुछ तो नहीं होगा या फिर नहीं, कैसे? अब वो जैसे जो यहाँ पे तीन केस प्रोसीजर, सर वो जो इस तीन केस केस में स्टडीज आती है एग्जाम में, तो वो कैसे आती है, मतलब वो क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस होते हैं या क्या पूछते हैं उसमें? क्या वो मल्टीपल चॉइस अगर होते हैं केस स्टडीज में या? मल्टीपल चॉइस है, ऑलवेज जितने भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन है वो मल्टीपल चॉइस रहेंगे, बट सिनेरियो बेस्ड रहेंगे। अच्छा, तो ठीक जो है, केस स्टडीज हैं वो तीन बड़े बड़े सिनेरियोज होंगे और उन सिनेरियोज में अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। आप उनको पढ़ोगे और उन्हीं उनके जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको आप आइडेंटिफाई कराओगे अपने सेटअप से, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप रिप्लाई करोगे। राइट राइट। ठीक है, तो VPN, नॉट ओनली द VPN, किसी भी प्रोडक्ट की बात करें जो एज्यूर पे हमने टास्क परफॉर्म किए हैं, किसी भी टॉपिक की बात कर लें, जो हम स्टेप फॉलो करते हैं, जो प्रैक्टिकली हम चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते समय हमें एन नंबर ऑफ सर्विसेज दिखाई पड़ती हैं। SKU दिखाई पड़ गया, इंटरनल एक्सटर्नल दिखाई पड़ गया, अवेलेबिलिटी सेट दिखाई पड़ गया। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? इन्हीं में से आएगा। I want to अच्छा protect my setup, so which tools can help you, which service can help you। दो तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, अवेलेबिलिटी सेट लगा सकते हैं, बैकअप लगा सकते हैं, लाइक दैट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा, जो सबसे सटीक ऑप्शन रहेगा, उसको आप रिप्लाई करेंगे। और जो केस स्टडीज होती है सर, क्या वो जनरली नेटवर्किंग, मतलब क्या वो केस स्टडी जैसे एक्टिव डायरेक्टरी के सेक्शन पे भी पूरी केस स्टडी बना सकते हैं, नेटवर्किंग के उस पे भी पूरी केस स्टडी बना सकते हैं, और जैसे स्टोरेज के ऊपर भी पूरी केस स्टडी बना सकते हैं, या ऐसा कुछ होता है कि भाई नेटवर्किंग में से ही आता जाता है, ये क्या है? देखो, अगर हम एज्यूर की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें, जो हम लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस केस में जो चांसेस हैं, आपके पास चार ऐसे टॉपिक है, ठीक है ना, चार ऐसे टॉपिक है जो हेल्प करते हैं आपकी टू मैनेज द केस केस स्टडी में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। पहला सबसे है नेटवर्क, दूसरा है एक्टिव डायरेक्टरी, तीसरा है स्टोरेज, चौथा है आपका कंप्यूट पार्ट। हम्म। कंप्यूट थोड़ा सा आसान है, तो कंप्यूट का लेवल थोड़ा सा कम कर दिया गया है, ठीक है ना। बट अगर हम हम्म। बात करें VMware या अदर की, सॉरी, बात करें हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी की या नेटवर्क की, इनका लेवल हमेशा अप रहता है, क्योंकि इसके अंदर पढ़ने वाली चीजें बहुत है। यस सर। ये प्लीज कंफर्म। यस सर, ये आई कैन हियर यू। यस। ठीक है, ये अपने पास हो गया लोड बैलेंसर। और फॉर आवर VPN कनेक्शन, क्योंकि कल अगर हम VPN सेटअप करते हैं ना, तो इट विल टेक अप टू 45 टू 1 आवर लेगा ये एप्लीकेशन गेटवे का। तो डू वन थिंग, इसको हम स्टार्टिंग में इम्प्लीमेंट कर देंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी तभी हो पाएगी जब आपके पास VPN रहेगा। डू वन थिंग, हम्म। इसको हम सेटअप कर देंगे, और सेटअप करने के बाद हम डायरेक्ट बैकअप उठा लेंगे। ओके। जैसे ये और रेडी हो फायर जाएगा तो ये आर्टिकल का, sorry, सर फायरवॉल कब कवर करेंगे फिर? फायरवॉल बाकी है ना इसमें? छोटा सा टॉपिक है, कल ही कवर कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। VPN फिर बनने के बाद VPN जब, के साथ है। हाँ, वीपीएन डिप्लॉय करने के बाद हम फायर कर लेंगे, तो फिर कल नेटवर्किंग पूरा खत्म VPN हो रेडी जाएगा हो सर? जाता है तो फिर क्या सर? VPN इंप्लीमेंट होने के बाद फायरवॉल को ऐड कर हाँ। देंगे। हाँ, और फिर फायरवॉल सीख के फिर जो होपफुली तब तक वीपीएन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल तक या परसों तक नेटवर्किंग खत्म हो जाएगा, तो फिर मॉनिटर एंड बैकअप रहा, और एज्योर एडी रहा, और स्टोरेज का एक पार्ट रहा बस। हम्म हम्म हम्म।
बस खाली देखो जैसे कि 28 है ना कल, तो आपके हिसाब से सर और कितना टाइम लग जाएगा? मुझे कल थर्सडे है ना? क्या चीज़ सर? कल थर्सडे है अपना, तो कल थर्सडे, हाँ। थर्सडे फ्राइडे 2 दिन ये मिल जाएगा। हम्म, बैकअप में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एडी में 2 दिन लगेगा, 2 घंटे मतलब। पूरा आईडी 2 घंटे में हो जाएगा सर? 2 दिन 2 दिन 2 दिन, दो। 3 से 4 घंटे लगेंगे। हम्म। जब 3 से 4 घंटे लगे, पर अपने तो 50 मिनट 55 मिनट्स के सेशंस होते हैं, तो उस हिसाब से एक या 2 दिन लंबे सेशन लेने पड़ेंगे तो जल्दी फिनिश हो जाए। एक काम करते हैं ना, कल और परसों, ठीक है, 2 दिन, थोड़ा सा। नहीं नहीं, कल तो क्लासेस हैं, 2 3 क्लासेस हैं। सर सैटरडे संडे भी मैं फ्री होता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको एक एक घंटा मिलता हो तो अपने कर सकते हैं, अगर नहीं मिलता। कुछ सैटरडे संडे 3 बैचेस हैं जो केवल सैटरडे संडे ज्वाइन करते हैं। हम्म, मॉर्निंग 11 से है, फिर उसके बाद 1 से है, फिर 5 से है, और फिर शाम अच्छा को सिंपली लर्न के साथ रहती है। सैटरडे संडे अच्छा। बस ये 2 बैच निकलने वाला है, बट लेकिन फिर क्या फायदा, इस सैटरडे तो निकल जाएगा एक बैच। ठीक है, तो एक नेक्स्ट काम वीक करते हैवी हैं, कर कल लेंगे हम, अगर। कल कल 1 घंटे की क्लास कर लेते हैं, फ्राइडे 2 घंटे की क्लास कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो कल ठीक है। वीपीएन का कंप्लीट कर लेंगे, और 2 घंटे जो बचेंगे उसमें हम बैकअप कर लेंगे, लास्ट बचेगा अपने पास फायरवॉल भी कभी कल ही खत्म कर देते हैं। फायरवॉल जब तक ये हमारा वीपीएन सेटअप होगा, फायरवॉल खत्म कर देंगे, और फ्राइडे को पूरा बैकअप कंप्लीट कर लेंगे, और फिर बचेगा एडी। एडी फिर हम सैटरडे संडे में टाइम निकलेगा तो ठीक है, नहीं मंडे ट्यूसडे में पूरा। ठीक है सर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के चलो आसपास हो डन जाना करें, चाहिए हम लोग। आराम से, बिल्कुल आराम से हो गया, अगर बीच बीच में मतलब हम 2 3 दिन लगातार कर दिए तो आराम से हो। ठीक है सर, ठीक है। चलो ठीक है। ओके सर, आप मेरे को साइन कर दीजिए प्लीज, रिकॉर्डिंग। अब जैसे ये कंप्लीट होता है, मैं ओके सर, थैंक यू सर।